Good morning, everyone. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic of nationalism in India, that is calling of non-cooperation movement and working towards civil disobedience movement. In our previous video, we studied that how Gandhiji started Khilafat non-cooperation movement. We studied that गांधी जी ने हिंदूज़ और मुस्लिम्स को इकट्ठा करके एक मूवमेंट शुरू की थी खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. एंड ये मूवमेंट रूरल एरियाज़ में दैट इज़ कंट्री साइड अर्बन एरियाज़ में स्प्रेड हुई थी. प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में ये स्प्रेड हुई थी. एंड वी ऑल्सो स्टडीड द एग्जाम्पल ऑफ गुदैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पर मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्प्रेड किया गया था. Then we studied then today we'll be studying that why Gandhiji decided to call off this non-cooperation movement. The first point says in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. And the reason was he felt that the movement was turning violent in many places. द मेन रीज़न कि उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो कॉल ऑफ क्यों की थी, बिकॉज ही फेल्ट कि ये मूवमेंट कहीं जगह पर वायलेंट हो रही थी. तो दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट. Then satyagrahis need to be properly trained before they could be ready for mass struggles. सेकेंड रीज़न ये था कि गांधी जी वांटेड कि जो सत्याग्रहीज हैं, द वंस हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दी मूवमेंट्स, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है सो दैट वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो सकें. देन another reason was within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. वन रीज़न वॉज कि कुछ लीडर्स अब थक चुके थे पहले सत्याग्रह मूवमेंट करके, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करके, एंड दे वांटेड कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं प्रोविंशियल काउंसिल के, वो उसमें पार्टिसिपेट करें और मूवमेंट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दें. बिकॉज दे थॉट कि यही तो क्या पता वो इन इलेक्शंस के थ्रू पावर्स गेन कर लें, मतलब एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश उनके पास भी कुछ पावर्स आ जाएं. Then C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. एक स्वराज पार्टी बनाई गई by C.R. Das and Motilal Nehru. But young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. But जो young leaders थे like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they wanted कि अभी इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया जाए एंड फाइट किया जाए फॉर फुल इंडिपेंडेंस. Further, in 1920, there were two factors that shaped our Indian politics. The first was the effect of the worldwide economic depression. During the time of depression, agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. Turmoil means that there was a great hustle and bustle in the rural areas because there was no demand for agricultural products and the farmers' income was totally vanished during this time, and due to this reason they were not able to pay the taxes to the Britishers. Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. अब इसी चीज़ को लेकर एक टॉरी गवर्नमेंट बनाई गई ब्रिटेन में, एंड उसके जो मेन हेड थे, हिज नेम वाज सर जॉन साइमन. अब वील स्टडी दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस कमीशन. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. अब जो ये
थी, टॉरी गवर्नमेंट थी, इसका मेन कमीशन, इन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी एंड उस कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, एंड इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन था, आफ्टर द नेम ऑफ हिज हेड सर जॉन साइमन। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस कमीशन वॉज कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आने थे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आने थे एंड सजेस्ट करने थे डिफरेंट चेंजेस, और उन्होंने कुछ सजेशन देनी थी रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन मेंबर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आने थे और कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब ये कमीशन इंडिया में पहुंची 1928 में, तो सभी लोगों ने स्टेशन पर स्लोगन्स, नारे लगाए कि "गो बैक साइमन"। All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ आई हुई थी पार्टिसिपेट करने के लिए इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग भी थी प्रेजेंट। जब डिमॉन्स्ट्रेशन इतनी वाइड स्प्रेड होती रही रिगार्डिंग दी साइमन कमीशन, लोगों ने उनको साइमन कमीशन को अब इंडिया से निकल जाने के लिए कहा, और इस क्राउड को संभालना उस टाइम पे इतना मुश्किल हो गया था कि जो लॉर्ड इरविन थे यहाँ के गवर्नर जनरल, उन्होंने एक वेग ऑफ़र लोगों को शांत करने के लिए एक वेग ऑफ़र दिया। नाउ व्हाट इज़ वेग ऑफ़र? वेग ऑफ़र मीन्स कि एक कोई मतलब कुछ क्लियर नहीं था वो ऑफ़र, बस एक वेग सी स्टेटमेंट उन्होंने पास की। लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 1929 a vague offer of dominant status. डोमिनेंट स्टेटस मीन्स दैट उन्होंने एक मतलब इतना क्लैरिटी के साथ नहीं, एक स्टेटमेंट पास की कि इंडिया में अब डोमिनेंट स्टेटस अप्लाई किया जाएगा। एंड डोमिनेंट स्टेटस मीन्स कि अब इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, दैट मीन्स देयर विल बी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो एंड देयर विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो। सो Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे वो और ज़्यादा फर्म हो गए कि नहीं, हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। The liberals and moderates, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominance, gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में डिमांड रखी गई पूर्ण स्वराज, दैट इज़ फुल इंडिपेंडेंस की। अब और इन्होंने डिसाइड किया, जवाहरलाल नेहरू एंड उनकी ही सारी जो लाहौर कांग्रेस सेशन था उसमें डिसाइड हुआ कि अब वील डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, दैट इज़ फुल इंडिपेंडेंस। और ये भी डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, वेयर द पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। So, I hope today's topics are clear to you. Thank you.